Hello students, welcome to my YouTube channel Vipin Chavda Chemistry and Biology Tutorial. In this video we will discuss an important topic from examination point of view, that is state of matter and their properties. When we observe the different type of matter around us, we can see that matter exists in different states. So on the basis of physical state, matter can be classified into three states. Number one, solid state. Number two, liquid state. Number three, gaseous state. So all the matter can be classified into three states: solid state, liquid state and gaseous state. For example, all sand, rocks, metals like iron, salt, minerals are solid. Sand, rocks, metals, salt and minerals or ore, these are solid. And water, oil, kerosene, milk, petrol, diesel, these are in liquid state. Gaseous state, the example of gases are air, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrogen. These are the examples of gaseous state. So these are the examples of solid, liquid and gas. And we will discuss the properties of solid, liquid and gas. The first one is the properties of, what are the properties of solid, liquid and gas. And what are the properties of solid? Number one, the properties of solid are: number one, solid have definite shape and definite volume. This means that all the solid have the fixed shape and fixed volume. All the solid have fixed shape and fixed volume, that is known as definite shape and definite volume. For example, if we observe the metal like iron or iron articles like a chair, a bench, a maze, a stool, a iron nail, these have fixed shape. Like that, sand, rock, metals like iron, salt, minerals, these have a fixed shape. So we call them solid. This is the first property of the solid. The second one is solid have minimum space, means enter particles distance between the particles. Solid have minimum interparticle distance between the particles. Like if we observe the solid, the particles of solid are arranged like this manner.
This means that the particles of solid are closely packed. This means that particles of the solid are closely packed or in a regular arrangement. So the solid particles of solid are arranged a particular pattern, so they are closely packed. So the space between the particle is very rare. This means they have minimum space between the particles. This is the second property. Third one, they have maximum force of attraction. The particles of solid have maximum force of attraction. This means we have already learned about the solid have minimum space between the particles. These are the particles of the solid. They have minimum space, due to which the particles are closely packed and they are very closer to each other, due to which the particles of solid attract each other with a very strong force of attraction. So they have maximum force of attraction. Due to the maximum force of attraction, the particles of solid cannot move easily, because the particles are closely packed and they have stronger force of attraction, due to which they cannot move easily. So they have solid have minimum kinetic energy. When the particles move, they acquire kinetic energy, the energy possessed due to their motion. When particles move, then a energy is created that is known as kinetic energy. So the kinetic energy between the particles of the solid is very less or negligible. That means they have minimum kinetic energy. These are the properties of the solid state. And the particles of the solid cannot be compressed. Solid cannot be compressed. These are the properties of matter: first, second, third and fourth. Now next property is number 4. Solid cannot be compressed. We cannot compress the solid. Fifth, solid cannot be filled in the container. The solid cannot be filled in the container. दिस मीन्स कि हम सॉलिड को किसी कंटेनर के अंदर, किसी जार के अंदर अगर डालना चाहें तो उसके अंदर हम नहीं अरेंज कर सकते, और सॉलिड को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते. कंप्रेस मीन कि हम सॉलिड को इजीली दबा भी नहीं सकते. सॉलिड they have high density. Solid have high density or they are stronger and heavy. तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो स्ट्रांग होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि उनकी डेंसिटी हाई होती है. डेंसिटी मीन्स डेंस, कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर कितना डेंस है, कितना घना है, कितना गाढ़ा है. अगर हम डेंसिटी की डेफिनेशन देखें तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी. और जो सॉलिड होंगे तो सॉलिड का मास हाई होता है. हाई होने के कारण इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है. तो दे हैव हाई डेंसिटी, इसका मास ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा, जिससे इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. और सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से वे हैवी और स्ट्रांग होते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड.
ये सॉलिड की हमने क्या पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है। फर्स्ट वन इज सॉलिड हैव, ऑल द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड वन, जो सॉलिड था, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। थर्ड वन, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ थिंग, दे हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल उसके बिल्कुल क्लोजली पैक्ड पड़े हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो दोनों के दोनों पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। इजिली मूव नहीं कर पाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लो होगी। तो दे हैव लीस्ट और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं हम उनको इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। लाइक दिस, कि अगर मैं इस डस्टर को देखूं तो इसका जो आयरन, जो लकड़ी का जो बना हुआ है, जो वुड का जो पार्ट बना हुआ है, इसको मैं कंप्रेस करना चाहूं तो ये कंप्रेस हम नहीं कर सकते, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर लोहे की कोई रोड है, अगर उसको मैं प्रेस करना चाहूं, मोड़ना चाहूं इजिली, तो वो बेंट नहीं होगी, वो कंप्रेस नहीं होगी, मतलब हम उसको इजिली दबा नहीं सकते। सॉलिड कैन नॉट बी फिल्ड इन द कंटेनर। अगर मैं सॉलिड को किसी जार के अंदर, जग के अंदर, किसी बकेट के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर डालना चाहूँ तो उसके अंदर मैं उसको फिल नहीं कर सकता, मतलब कि उसको हम भर नहीं सकते। जैसे अगर पानी को किसी कंटेनर के अंदर डालें तो पानी क्या करेगा, उस कंटेनर के अंदर कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, बट सॉलिड को हम कंप्लीटली फिल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, दे हैव हाई डेंसिटी एंड दे आर हैवी। और ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हम और क्या लिख सकते हैं, solid are rigid, all the solids are rigid। जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको क्या कहा गया है, रिजिड की। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ये हमने जो पढ़ा है कि सॉलिड होते क्या हैं और सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अब कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ मैटर ऐसा है जो दिखने में सॉलिड है बट उनको इजिली कंप्रेस किया जा सकता है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। लाइक कि अगर हम देखें एक रबड़ बैंड, वही सीधा रबड़ बैंड, तो रबड़ बैंड इज स्ट्रेच्ड। जब हम रबड़ बैंड को खींचेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा और उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो उसकी शेप चेंज हो रही है और हमने क्या कहा कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ऑल द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप बट व्हेन वी स्ट्रेच ए रबड़ बैंड इट्स चेंज इट्स शेप। सो व्हाई वी कॉल इट सॉलिड। जब रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर देता है, तो हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन वी फोर्स इज रबड़ बैंड, जब हम रबड़ बैंड को फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, अपनी शेप चेंज कर देगा। बट जब हम इसकी फोर्स को छोड़ेंगे, जब इसको खींच के रबड़ बैंड को छोड़ेंगे वापस, तो ये बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसलिए क्या है कि इसकी शेप इजीली चेंज नहीं होती, चेंज तभी होगी जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे, और जब फोर्स हटाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सो रबड़ बैंड्स आर सॉलिड इन नेचर। सेकंड क्वेश्चन इज कि ऑल द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली। सॉलिड को हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, बट स्पंज आर सॉलिड। जो स्पंज है, स्पंज क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वाई स्पंज आर सॉलिड बट वी कैन कंप्रेस इजिली, बट इट कैन बी कंप्रेस्ड। जो सॉलिड है, जो स्पंज है, स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देन व्हाई वी कॉल इट सॉलिड, देन व्हाई वी कॉल दैट द स्पंज इज सॉलिड। सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी जो सॉलिड में पढ़ा कि सॉलिड को हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, और स्पंज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसको सॉलिड क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, बिकॉज द स्पंज हैव द होल्स इन इट and air is filled in the holes of sponge. When we compress or press the
sponge, the air is expelled out. That is why it is called solid. कि जब हम स्पंज को, जो स्पंज है, स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, और उनके अंदर एयर भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, दबाने से क्या होता है कि एयर जो इसके अंदर, जो होल्स के अंदर जो एयर थी, वो एयर बाहर की तरफ आ जाती है। और जब वापिस छोड़ते हैं, जब प्रेस किया हुआ था, जब फोर्स हटाते हैं, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड। इसलिए हम स्पंज को क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। जो मैंने अभी बताया स्पंज सॉलिड क्यों कहते हैं, जबकि इसको कंप्रेस किया जा सकता है, जो भी मैंने आंसर बताया वो इस क्वेश्चन का आंसर था। और नेक्स्ट थिंग इज कि सॉलिड कैन नॉट बी फिल्ड इन द कंटेनर, कि हम सॉलिड को किसी कंटेनर के अंदर फिल नहीं कर सकते, बट साल्ट और सैंड आर फिल्ड इन ए कंटेनर। जब हम साल्ट को जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर की वो शेप ले लेगा। सेकंड थिंग, और जिस कंटेनर के अंदर हम डालेंगे उस कंटेनर को अच्छी पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर देगा। तो हम उनको सॉलिड क्यों कहते हैं? जो साल्ट है, शुगर है, सैंड है, हमने कहा कि सैंड, साल्ट एंड शुगर, इनको अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर, अगर जग के अंदर डालूं तो ये जग को कंप्लीटली भर देगा। मिट्टी को डालूं, मिट्टी भी जग को कंप्लीटली भर देगा। गिलास के अंदर डालूं तो गिलास को भी भर देगा, कंप्लीटली फिल कर देगा। मतलब जिस कंटेनर के अंदर डालूंगा उस कंटेनर को ये कंप्लीटली फिल कर देगा। तो हम इनको सॉलिड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बिकॉज सैंड, साल्ट और शुगर हैव वेरी टिनी पार्टिकल्स, and the particles of the sand, solid or salt are very tiny crystals। जो साल्ट, सैंड और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, वो उनके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं उनके, वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट मींस कि एक सॉलिड की फॉर्म में, दाने की फॉर्म के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, इन पार्टिकल्स की शेप को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो टिनी पार्टिकल्स हैं, टिनी जो क्रिस्टल हैं साल्ट के और शुगर के और सैंड के, उनको हम ना तो कंप्रेस कर सकते, ना ही वो उनकी शेप चेंज हो सकती है। इसलिए जब इनको कंटेनर के अंदर डालते हैं तो कंटेनर के अंदर अपनी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देते हैं, बट इनके जो सॉलिड क्रिस्टल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता। That is why these are solid in nature. This is all over about the solid state and their properties. I hope आपको ये लेक्चर समझाया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट क्या होते हैं। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द सॉलिड स्टेट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।